Hello, all the students of class 9th. I welcome you to the brand new class of providing access to all the knowledge that you require to enrich yourself and enlighten yourself. So today we are here to teach you about the first chapter of SST subject, and it starts with the chapter The French Revolution. Up to class 8 you will study social science, which includes all the geography, history, civics, economic sections together. But now from class 9th it is very important class because it is the base class for class 10th. So you are going to study about all the parts of the SST, social science, in different sections, and one of the important section is history, and the first chapter of history is the French Revolution. So I hope you are all very well, and you all are watching this. Please watch all the videos which are being provided to you, because all the videos are just for you, just to enrich you, just to enlighten you, just to make you take the benefit. Because as you know, the situation is going on, we cannot study in the class, or we are studying like this, and you need to take benefit of this. You need to take the benefit of the holidays by studying like this. So not going further, you are sincere, I will just start the class. So today we are going to study about the French Revolution. As you all know, when you study about the ancient history or the medieval history, you will go through and you will come about, आप जानेंगे या पहचानेंगे, ये पढ़ते हैं आप तो आपको पता चलता है कि कितनी कहानियाँ हैं राजाओं के बारे में, और पूरी दुनिया जो थी कई देशों में बटी हुई थी, हर देश में राजाओं का शासन होता था। लेकिन क्या राजा के शासन से जो साम्राज्य के लोग थे, सम्राट के शासन साम्राज्य के लोग, राजा के शासन से राज्य के लोग क्या खुश थे? क्योंकि राजा जो था उसके पास निरंकुश शासन होता था, उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती थी, वो जब चाहे कोई भी फैसले ले सकता था। तो कभी कभी राजा उदार होते थे, दे वर वेरी काइंड टू द पीपल, दे ऑलवेज लुक आफ्टर देम, they always cared about the needs and the requirements of their subjects. लेकिन कभी कभी sometime the kings were very tyrant, very despotic, बड़े क्रूर होते थे, बड़े निरंकुश किस्म के होते थे. They were not kind, they were just enjoying their power and privilege, बस वो सुख समृद्धि का फायदा उठा रहे थे. तो दुनिया में कहीं ना कहीं जैसे आपने कहावत पढ़ी होगी, पाप का घड़ा भर जाना, तो पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूट जाता है. उसी तरह के सबसे पहली बार कहाँ फूटा वो पाप का घड़ा कि राजा का शासन अब लोग नहीं चाहते थे. अब चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बनाई है जहाँ पे चुनी हुई, जैसे कि हम चुनी हुई सरकार हो, जैसे हमारे देश में है. तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? यूरोप का एक देश है फ्रांस, वहाँ पर राजाओं का शासन था. वहाँ पर एक वंश था जिसका नाम था बॉर्बन डायनेस्टी. बॉर्बन डायनेस्टी, और उसके जो शासक थे उनका नाम था लुइस 16. लुइस 16 जो थे बॉर्बन वंश के शासक थे, जो फ्रांस पे शासन कर रहे थे. तो today I will just acknowledge you about what we are going to study further. I will just acknowledge you about some important points of this chapter. So there was the reign of Louis 16. So उस समय क्या परिस्थितियाँ हुई, what were the situation or the conditions prevailing during the reign of Louis 16? When Louis 16 has ended, तो Louis 16 जब राजा बने तो फ्रांस बड़े ही संकट से गुजर रहा था. The France was trapped under a huge amount of debt, बहुत कर्ज में डूबा हुआ था. तो क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. लेकिन इसके बाद सबसे मुख्य पॉइंट है लुइस 16 का शासन कैसा रहा. उनके शासन के बाद एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आई जिसे हम जैकोबिन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं. इसको जैकोबिन गवर्नमेंट कहते हैं. इसी को आप अलग नाम से जानेंगे जिसे रेन ऑफ टेरर कहते हैं. ठीक है. यहाँ पर कैसे रॉबस्पेरी का ये शासन का माना जाता है, जो बड़ा ही क्रूर शासन था. उसके बाद आई डायरेक्टरी, उसके बाद
आपके चैप्टर का जो अंत होगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट से। तो दीज आर द 5 चेन्स, ये 5 श्रृंखलाएं हैं, और इन्हीं श्रृंखलाओं के बीच की जो कड़ियां हैं, ये जो आपको तीर दिखाई दे रहे हैं, दीज एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एरो जो है अपने आप में कहानी लिए हुए हैं। ये कैसे बार्बन डायनेस्टी के बाद नेशनल असेंबली आई, नेशनल असेंबली के बाद कैसे जैकोबिन गवर्नमेंट का शासन आया, उसके बाद कैसे डायरेक्टरी का शासन आया, उसके बाद कैसे नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आया। इसी ये कहानी है, इन 5 बिंदुओं में ही सारी कहानी जो है सिमट जाती है। तो सबसे पहले आपको रिमेम्बर करना है इसके बारे में कि मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो बार्बन डायनेस्टी लुइस 16 का शासन था, ठीक है। उसके बाद आया नेशनल असेंबली फॉर्मेशन किया लोगों ने, क्या सिचुएशन से इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप घबराएंगे नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और हमसे पूछेंगे। उसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट, उसके बाद डायरेक्टरी, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, और इसके बीच की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है सारी कहानी इन्हीं में सिमट के रह जाती है, और उस कहानी को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो मानी जाती है, सबसे बिंदु जो मानी जाती है जहाँ से सबसे पहली बार क्रांति की शुरुआत हुई, तो उसको हम मानेंगे, इसको आप नोट करेंगे, अटैक ऑन फोर्ट ऑफ बस्तिल, बस्तिल के किले पर हमला।